Good evening, Smita ji. Good evening, everyone. Good evening. Yeah, And so all the ready, everyone? Am I audible, Smita ji? yes, yes. आवाज प्लीज सब लोग ज्वाइन कर लिए तो वीडियो ऑन करना। या जो भी आज परफॉर्म कर रहे हैं, प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए। Okay. So good evening, everyone. Keep your video on if you are performing. जितने भी लोग आज मेरे साथ आसन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, प्लीज अपने वीडियो ऑन करेंगे। तो मैं अगर कुछ आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप कर भी नहीं रहे हैं तो भी आपके मोबाइल ऑन करके वीडियो ऑन करके आप बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। तो आज का सेशन हम आरंभ करते हैं डे 2 वर्कशॉप ऑफ आवर IBS सेशन 2। ओके, सो रेडी। तो जो भी सेशन हम चालू करते हैं उससे पहले प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेटिट्यूड हमारे इष्ट देवता के प्रति एक धन्यवाद हम कहते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेयर। सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोज। आप जो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहते हो उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। ये सुखासन है। अगर आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है तो एनी वन लेग फोल्ड करके, अगर आपको पूर्ण पद्मासन में बैठना है तो दोनों लेग इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आपको वज्रासन में बैठना है तो वज्रासन में आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। तो जो कंफर्टेबल है उस पोजीशन में आप बैठिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा, कीप ऑन योर थाइज, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। ओके, अगर आपने चश्मा पहना है तो प्लीज अपने स्पेक्स निकाल दीजिए, एक साइड में रखिए प्रेयर होने तक। स्लो एंड डीप इनहेल एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Next inhalation, exhale with Omkar. Inhale. Oh. Inhale. Oh. Inhale. Oh. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Slowly rub your palm, cup your eyes, feel warmth of your palm, and gently take your hands down and open your eyes. Good evening, everyone. So, आज का सेशन चालू करते हैं फर्स्ट नेक मूवमेंट के साथ। So slowly drop your chin lock करते हुए inhale and stretch your neck back. Exhale, right. Inhale, exhale, front. Inhale back, exhale front. 4,
5. Relax at center. Inhale and slowly take your neck right side with exhalation, and your chin and shoulder should be parallel. So stretch and the center. Inhale, exhale, left. Inhale, center, exhale, right. Inhale, center, exhale, left. 2 more. Inhale, center, exhale, right, center, left. Relax your neck. Now slowly inhale and exhale. Take your right ear to the right shoulder. Try to touch your shoulder, your ear, right ear to the right shoulder, but don't take your shoulder up. Shoulder should be relaxed. Okay, only neck movement, and bring your awareness at your opposite side of neck. Then inhale center and take your neck to the left side. Feel straight opposite side. Okay, center, right, center, left, center, right, center, left, center, right, center, left. Relax, neck at center. Now drop your neck. Inhale and slowly neck rotation. Don't give jerk. Very gently do neck movement. Inhale, go back, exhale, front. जिनको अगर cervical spondylitis है, neck pain है, so those people please don't do full neck rotation. They can just do half neck, right and left. But जिनको neck में कोई issue नहीं है, वो they can do full neck rotation. Inhale, take your neck back, exhale, front. 2, 3. Keep your eyes open. 4, 5. Relax. Drop your neck front. Center में lock करिए neck, and I do opposite side neck rotation. Inhale, take your neck back, exhale, front. Inhale, back, exhale, front. जितने भी neck movement है वो बहुत आराम से और gently करने हैं. Don't give jerk. Don't shrink. Don't squeeze your shoulder. Keep your shoulder very relaxed and gentle way. Move your neck. After 5 rounds, take your neck at center and relax. Okay, and always जो भी हम आसन करेंगे उसके साथ कोऑर्डिनेट करना. आपका इनहेल एंड एक्सहेल साथ में बना रहे. अगर आपको इनहेल और एक्सहेल का ये प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ रहा, तो आपने जो भी आप ब्रीदिंग अपने नॉर्मल इसमें ले रहे हैं उसी को फॉलो करना. ज्यादा फास्ट में जर्क में कोई भी आसन नहीं करना है. ओके, यथाशक्ति मतलब जितना आपका लिमिट है, बॉडी की बात सुनना, अपना बॉडी के लिमिट के हिसाब से आप आसन करना. देन आपका स्थिर सुखम आसन, मतलब जो भी आसन आप कर रहे हो बहुत स्थिरता के साथ और उस आनंद लेते हुए वो पोस्चर में आप जब पहुंचते हो, उस एक्सरसाइज जो भी आसन हम करेंगे उसका एक आप उसका सुख मतलब आनंद लो. इतना आराम से आप उस पोस्चर में जाके रेस्ट करके इनहेल एक्सहेल के साथ मेंटेन करो. ठीक है, राइट. Now, take your both hands center, palm facing each other. Inhale. Okay. Now, slowly take your both hands back. Look at your right shoulder से पीछे wall की तरफ देखना है. Then center. Inhale, center and exhale to the left. अवेयर रखना कि आपका ओनली वेस्ट, आपकी कमर से ही आप मूव हो. पूरा बॉडी को आपको हिलाना नहीं है, ओनली कमर से आप ट्विस्ट कर रहे हो. Center, left, center, inhale, exhale, right, center, inhale, exhale, left, inhale, center, exhale, right, inhale, center, exhale, left. 2 more. Inhale, center, exhale, right, inhale, center, exhale, left. Now both hands at center, same, maintain there. Inhale, exhale, take your both palms, side, open your chest. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, center, exhale, out. 3, 4,
5. Okay, now hands, palm side. Okay, now just gently touch your shoulder. Okay, now start rotating your shoulders sideways. Inhale, sideways, sideways. Inhale and exhale. Very slowly. 1, 2, 3, 4, 5. जो भी मूवमेंट आप करें वेरी स्लोली और जेंटली करना है. अपोजिट रोटेशन नाउ. इनहेल एंड एक्सहेल के साथ डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now join your elbows. Now join your elbows at front. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. 3 up, down. 4 up, down. 5 up, down. Join your elbow at center. Inhale, exhale, side. Inhale, center, exhale, side. Only side. Center touch and side open like this. Center and side. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, relax your palm. Shake your palm. If you have any discomfort, just shake, 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 shake. Relax. Okay. Okay, now keep your right palm on your right side of your thigh. Left hand, slowly inhale and sideways, just side bending. Okay, maintain your left hand straight, elbow straight. Go to the right side. Exhale, down. Okay, inhale, exhale, down. Inhale, exhale, down. ये आसन आज जो भी हम करेंगे वो आईबीएस से रिलेटेड रहेंगे. तो हम ज्यादातर ट्राई करेंगे आपका इंटेस्टाइन, आपका एब्डोमेन मूवमेंट और जितना ज्यादा हो सके उसको मसाज कैसे मिलेगा. ओके, तो ये साइड बेंडिंग से आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा और नेचुरली आपको एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच होगा. एब्डोमिनल मसल्स को ऑर्गन्स को मसाज अच्छे से होगा और डाइजेशन रिलेटेड इश्यू सॉल्व होने में हेल्प करेगा. नाउ कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड. राइट हैंड इनहेल एंड गो टू द लेफ्ट. Elbow straight, right elbow straight. Exhale, down. Inhale, exhale, down. Okay, few more time. 3, 4. Inhale and exhale. When you coordinate with inhale and exhale, you will not feel tired. Okay, आप जब अपने inhale और exhale के साथ आपके आसन करते हो, आप थकावट महसूस नहीं करोगे. Okay, relax. Relax. Now slowly, both hands, shoulder level. Okay, what you are doing? Inhale, straighten your both hands, stretch in elbow. Just go right side. जितना हो सकता है नीचे जाना है, but hands in same level. जैसे बचपन में हम प्लेन खेलते थे ना, ऐसे ही करके सेम वे में, या फिर सीसॉ जैसे जाता है वैसे. राइट, सेंटर, लेफ्ट. आपको जब आप राइट साइड में जाओगे, राइट एब्डोमेन में हल्का सा आपको स्क्वीज महसूस होगा. जब इनहेल सेंटर, एक्सहेल जब आप लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट एब्डोमिनल पार्ट में आपको हल्का सा स्क्वीज महसूस होगा. वही हम चाहते हैं आईबीएस में आपको हेल्प करेगा. ओके, फ्यू मोर. इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट. Relax, both hands down, relax. Keep your both legs straight. Both legs straight. Now, toes. Just toes को close करना है tightly. Squeeze it and open it. Okay, आराम से करने हैं. ये सारे warm up आसन है जिसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं. 1, 2. बहुत आराम से बैठना है, बैक को एकदम स्ट्रेट रखते हुए. 2, 3, 4, 5. Relax. Now full leg same time में clockwise rotate करना है. 1, 2, 3, 4 and 5. Now opposite side. 1, 2, 3, 4 and 5. Now join your feet together. दोनों leg को साथ में देना है. Inhale, exhale, outside drop करना है. Inhale, touch, exhale, drop.
इनहेल, अगर आपको बैक में ओवर स्ट्रेन वगैरह हो रहा है, यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ वॉल. ओके, इनहेल, exhale, drop your feet. Inhale, center, exhale, drop. 3, 4, 5. Relax. Okay. Fold your right leg now. Interlock your palm और right thigh को अंदर से पकड़ना है. Inhale, take your right leg up. Back maintain करना, आपका back बिल्कुल straight बना रहे. Back को hunch नहीं निकालना है, straight बैठना है. Right leg up. Now only rotate your ankle. Ankle rotation. देखना आपका नी और एंकल एक लाइन में हो. आपका जो लेग पोजीशन है, बैक स्ट्रेट रहेगा, नी एंकल एक लाइन में रहेगा. नी को ड्रॉप मत करना, सेम एंकल लेंथ में ही रखना. एंड मूव योर एंकल क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ अपोजिट, रिवर्स, उल्टा घुमाना है. 1, और जो लेग नीचे है उसका टो अलर्ट रखना है, उस पैर को ऐसे वैसे गिराना नहीं है. ओके, 3, 4, 5. ओके, नाउ आपका एंकल रोटेशन हो गया. अभी यहाँ के नीचे से, नी के नीचे का रोटेट करना है लेग को. अगेन होल्ड टाइटली, जस्ट रोटेट योर लेग. 1, 2, वेरी स्लोली, आराम से. 3, 4, 5. Okay, now reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Close your leg, back straight. Inhale and exhale, open your leg. Inhale, close. Exhale, open. Inhale, close. Exhale, open. Close, open. 2 more. Close, open. Last, close and open. Give rest to your right leg now. Same thing we'll do with left leg. Close your left leg, fold it. Slowly open it up. Check your alignment. Knee and ankle should be in one line. Back always maintain straight. Move your ankle. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now full leg, like knee se niche wala leg. Start rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Now reverse. 1, 2. बहुत आराम से करना है, जर्क नहीं देना है. दूसरा लेग जो है नीचे उसको स्ट्रेट रखना है. 4, 5. Relax. Close your leg now. Keep your back straight. Slow inhale, exhale, straight. Inhale, exhale, straight. 2, 3, 4, and 5. Relax. Just flap your knee. Okay. Do your toes front back and relax your leg. Relax. Okay. Sit in Dandasana. इसे दंडासन कहते हैं. तो sit in Dandasana. Now take your right leg. Just take close to your left inner thigh. Okay. आपका जो राइट लेग है उसको फोल्ड करके लेफ्ट इनर थाई के पास लेना है. ले लिया. जैसे जानु शीरासन हम कर रहे हैं. बैक स्ट्रेट रखना है. जो नीचे पैर है उसके टो अलर्ट रखेंगे, ऊपर पॉइंटिंग रहेंगे. ये लेग नीचे फ्लैट रहेगा. इनहेल. इसमें मेन इंटेंशन है आप जितना आपका स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, जितना आप स्पाइन स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, आप पूरा पीठ को सीधा रखते हुए फॉरवर्ड जाना है. अगर आप हंच करोगे, आप आगे जाओगे तो उसका कोई यूज नहीं है. आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. और अगर किसी को लोअर बैक पेन है या स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिस्फॉर्मिटी है, तो वो लोग ये फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे तो अच्छा है. वो लोग जस्ट आगे जाते हुए यहाँ तक भी होल्ड किया तो भी चलेगा. बट अगर आप किसी को लोअर बैक एक या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेंथन योर स्पाइन अच्छे से एंड एक्सलेशन के साथ बैक स्ट्रेट रखते हुए जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाना है. होल्ड योर टोज. टोज होल्ड करते हुए लुक फ्रंट, आगे देखना है. ओके, मेंटेन देयर. 1,
2 और बैक से हंच निकालना है, 3 4 5, स्लोली इनहेल एंड कम बैक। इसी को हम डायनामिक इसमें करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, टच योर टोज एंड कम बैक, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसमें अगर आप कंफर्टेबल है, काफी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप प्रैक्टिशनर है, तो थोड़ा एल्बो आउट करके आप अगर आगे जा सकते हो, आगे जाके ट्राई टू टच योर हेड ऑन योर नी। अगर आप कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने आप को फोर्स करना है। देन इनहेल, बोथ हैंड अप, exhale down. Now same thing we'll do with other leg. Keep your right leg straight, left leg fold, heel inside and toes front. Okay, again keep your back straight, inhale, both hands straight up, lengthen your spine, up and slowly bend forward, spine को straight करते हुए जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे धीरे 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 जाके touch your toes, maintain there, look front, 1 2 3 4 5, inhale, slowly come back, exhale, relax, same thing करेंगे, inhale up, slowly touch your toes, come up, inhale and exhale, inhale and exhale, 3 up, 4 up, now 5, अगर आप कंफर्टेबल है, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, slowly take your elbow out and go down and touch your head on your knee, inhale, slowly come up, exhale, relax, both legs straight, sit in Dandasana again, relax your body. Now जिनको अगर जानुशीरासन करते हुए अगर नी फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम है और टच नहीं हो रहा, दे कैन यूज द प्रॉप ऑल्सो। ओके, तो आपके पास अगर कोई ब्लॉक है या कोई पिलो है, यू कैन कीप हियर एंड जस्ट गो इनहेल, lengthen your spine and just go down and try to touch your head or chin. अगर आपको स्ट्रेचिंग में इजी हो जाता है, वो हेल्प करता है। ओके, रिलैक्स। नाउ हम आगे जाएंगे वज्रासन के लिए। सो सिट इन दंडासन फर्स्ट। वज्रासन और एक बेस्ट आसन है डाइजेशन के लिए। टेक योर राइट लेग बैक, सिट ऑन योर राइट हील, स्लोली टेक योर लेफ्ट लेग बैक। ओके, आपके बैक साइड में जो फीट है वो इस तरह से होना चाहिए, ऐसे ओवरलैप करके नहीं रखना है उसका, आराम से आप ऐसे रख के कंफर्टेबल बैठना है, आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहना है। यहाँ भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है बैठने में, तो अगर हल्का सा पतला अगर चादर वगैरह है कुछ फोल्ड करके आप एंकल के नीचे रख सकते हैं, जो आपको यहाँ पेन नहीं होता। अगर ये आपको सपोर्ट करेगा ना तो आपको कंफर्ट रहेगा, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हो, दोपहर का खाना, नाइट का खाना, तो मेक हैबिट ऑफ सिटिंग इन वज्रासन एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 मिनट्स डेली हैबिट करना। एक हल्का सा पतला सा ब्लैंकेट या कुछ तो लेके सपोर्ट के लिए, तो आपको ये पेन नहीं करेगा। कुछ लोगों को यहाँ भी पेन होता है, तो आप और एक पतला सा चादर या हल्का पतला सा पिलो लेके यहाँ भी रख सकते हो आप। ओके, लेकिन मेंटेन करना, आपका एब्डोमेन स्पेस बना रहे अच्छे से, ऐसा हंच करके एब्डोमेन को स्क्वीज नहीं करना है। मसल्स को जितना आप ओपन रिलैक्स कर रखोगे उतना डाइजेशन आपका अच्छा होगा। सिट स्ट्रेट एंड मेंटेन। ओके, तो आपको जो कंफर्ट है अपने कंफर्ट के हिसाब से आप प्रॉप यूज कर सकते हैं। अगेन सिट इन वज्रासन, सिट इन दंडासन फर्स्ट, विल प्रैक्टिस वज्रासन वन मोर टाइम। ओके, टेक योर राइट लेग बैक। ये पीरियड्स में वगैरह सभी कर सकते हैं। लेफ्ट लेग बैक। ओके, ये एक ही आसन ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद कभी भी कर सकते हो। ओके, मेंटेन योर बैक स्ट्रेट, ऑलवेज रिमेंबर आपका बैक स्पाइन जितना स्ट्रेट रहेगा उतना आपका एब्डोमेन को स्पेस अच्छे से मिलेगा। नाउ क्लोज योर आईज, कीप योर हैंड्स ऑन योर नी और रिलैक्स पोजीशन में रखना है हाथ।
इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए few second hold there. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Okay, relax. Now वज्रासन से ही हमें आगे शशांक आसन में जाना है. तो शशांक आसन के लिए आपकी नी जहाँ एंड नी के सामने आपका एल्बो आएगा. मेजरमेंट ऐसे लेना है जहाँ आपके हाथ मिडल फिंगर एंड होता है वहां पे आपका पाम आएगा. ओके, ये है मार्जरासन के लिए मैं बता रही हूँ आपको. ओके, मार्जरासन में आना. मार्जरासन में आपका पाम में जितना आपका शोल्डर में गैप है उतना मार्जरासन के लिए दोनों पाम में डिस्टेंस रहेगा. आपका रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेगा. आपका नी और हिप एक लाइन में रहेगा. ओके, और दोनों फीट फ्लैट रहेंगे. इनहेल करते हुए स्पाइन को अंदर पुश करते हुए लुक अप. एक्सहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर एंड चिन लॉक. Inhale, slowly look up, push your spine inside. Exhale, chin lock, push your spine up. Few more time. Inhale, जितना हो सकता है स्पाइन को अच्छे से अंदर पुश करते हुए लुक अप. एक्सहेल, जितना हो सकता है हंच निकाल के स्पाइन को ऊपर लेना है, चिन को अंदर करना है. ओके, इनहेल, वन मोर टाइम. Exhale. Okay, come back in Vajrasan. वज्रासन में आप आगे slowly go forward in शशांकासन. शशांकासन में जस्ट रिलैक्सेशन के लिए है. बस शशांकासन में करना क्या है, आपको हिप से ऊपर नहीं उठना है. पीछे आपका हिप हील को टच करके ही रहना चाहिए. तो जहां तक आप बैठे हो आप ऑब्जर्व करना. अगर आपको लगेगा आपका हिप उठ रहा है तो वहीं पे आपको अपने आप को रोकना है और हाथ नीचे रहेगा एंड देन गो डाउन. ओके, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका हिप उठ नहीं रहा है, देन गो फॉरवर्ड एंड रिलैक्स. ओके, स्लोली कम बैक. ओके, नाउ आप सभी वज्रासन में बैठे हो. मंडूकासन प्रैक्टिस करेंगे. तो मंडूकासन के लिए मेक अ फिस्ट ऑफ योर बोथ पाम. अच्छे से फिस्ट बनाना है. फिस्ट बनाने के लिए आपका थंब इनसाइड और अदर फिंगर्स ओवरलैप करके दोनों हाथ का फिस्ट बना लिया. दोनों हाथ को इस तरह से आपके नेवल के पास रखना है. पाम फेसिंग अप, आपकी हथेलियां ऊपर रहेगी, ऊपर फेस करके रहेगी. दोनों हाथ को आप क्लोज टू योर नेवल, आपके नेवल के पास दोनों हाथ को रख दिया. एल्बो क्लोज टू योर बॉडी, एल्बो आपके बॉडी के पास रहेगा. जैसे ही आप इनहेल और एक्सहेल के साथ फॉरवर्ड जाओगे, आप हल्का सा प्रेशर आपका हथेली का आपके नेवल रीजन में देना है. हल्का प्रेस करते हुए मेंटेन करना है. ओके, सो विल डू. Inhale, lengthen your spine. Exhale and slowly go forward. Again remember, don't raise your hip. आपका पीछे से हिप नहीं उठेगा. जितना आगे जा सकते हैं आगे जाना है and look front. आगे देखना है. ओके, आपके हिप को उठाना नहीं है. एल्बो क्लोज रहेंगे आपके बॉडी के साथ and look front and maintain. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly come up and relax. ये था मंडूकासन. ओके, नाउ उत्थान मंडूकासन करेंगे. उसके लिए दोनों लेग में गैप. स्प्रेड योर नीज, अपने नीज दोनों स्प्रेड कर लिए. ओके, नाउ करना क्या है, आपका राइट हैंड ऊपर लेके आपके लेफ्ट शोल्डर के पास आएगा. क्रॉस में इस तरह से क्रॉस होके रहेगा. एंड लेफ्ट हैंड इनहेल अप एंड क्रॉस योर राइट साइड. तो पीछे से आपके दोनों हाथ क्रॉस में रहेंगे इस तरह से. ओके,
मेंटेन देयर। और ट्राई करना आपके दोनों जो शोल्डर एल्बोज है आपके कान के पास अच्छे से मेंटेन है, एल्बो फेसिंग अप। होल्ड देयर 1 2 3 4 5. Slowly take your left hand down, right hand down, join your knees and relax. Okay, now again come in Majrasan. Majrasan में आइए. Slowly inhale, look up, exhale. Okay. One more time, inhale and exhale, relax. Now slowly go down in supine position. थोड़ा अपने अपने मैट पे okay, lie down in your mat. और हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो अगेन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें करना क्या है, पहले आप पूरा मेक श्योर कि आपका जो लोअर बैक है, आपका अपर बैक, मिडिल बैक और आपका हेड पूरा प्रॉपर मैट पे सेटल्ड है। ओके, पूरा टच हो रहा है प्रॉपरली। नाउ इनहेल, टेक योर बोथ हैंड अप और इनहेल करते हुए पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है। एस्टिकासन, जैसे हम लाइंग डाउन ताड़ासन भी कहते हैं। फुल बॉडी को एक्सटेंड, ऐसा लगना चाहिए कोई आपको ऊपर से खींच रहा है, कोई नीचे से खींच रहा है। इनहेल एंड मेंटेन दिस 1 2 3 4 5 and relax. Okay, now take your toes towards your head. सेम थिंग अगेन करेंगे, आपके टोज को टुवर्ड्स योर हेड। इनहेल एंड लेंथन योर स्पाइन। हाथ ऊपर स्ट्रेच करना है, लेग को, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर हेड एंड होल्ड 1 2 3 4 5 and relax. Now take your both hand beside your leg, thighs के साइड में लेंगे। Now inhale and right leg up, right leg 30 degree up. Fold your right leg, keep on your stomach, interlock your fingers and hold your leg and place your thighs on your stomach. सिंगल लेग पवन मुक्तासन कर रहे हैं हम। पूरा नी के ऊपर डायरेक्टली पाम नहीं आएगा, थोड़ा नीचे की तरफ। ओके, नाउ इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए रेज योर हेड अप। आपका कंफर्ट देखना है, आपको नी में स्प्रेन वगैरह है तो हेड उठाने की जरूरत नहीं है। स्लोली रेज योर हेड एंड ट्राई टू टच योर नी। जहां तक आप टच कर सकते हो वहां तक होल्ड देयर 1 2 3 4 5. Slowly go down and right leg straight. Now inhale, left leg up 30 degree. Fold your left leg. Again interlock your hand. दोनों हाथ से अपने लेफ्ट नी को पकड़ के थाइस पे प्रेस करते हुए इनहेल और एक्सहेल के साथ रेज योर हेड अप, होल्ड 1 2 3 4 5. Slowly head down, left leg straight. Now inhale, take your both legs together 30 degree up, fold your knees, interlock your hand, Pavan Muktasan. Inhale and exhale, head up, maintain there. Inhale and exhale के साथ hold करिए 1 2 3 4 5. Slowly inhale, head down and leg straight. Okay, पवन मुक्तासन अगेन गैस रिलीजिंग आसन है। जितना भी आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेन है, बहुत हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। ओके, नाउ फोल्ड योर बोथ लेग, फोल्ड योर बोथ लेग। दोनों लेग को फोल्ड करके आपके मैट में जितना गैप है उतना लेग को स्ट्रेट करना है। ओके, जितना गैप आपके मैट में है उतना दोनों लेग को स्प्रेड करेंगे। आपके दोनों हाथ से रिस्पेक्टेड एंकल को टच करके होल्ड करने की जरूरत, पकड़ना है। अगर वहां तक आप रीच नहीं हो पा रहे हो कोई बात नहीं, बट ट्राई करना होल्ड करने के लिए।
सेतु बंदासन करना है। अगर बालों में कोई हेयर बैंड वगैरह क्लिप है तो आप साइड में निकाल दीजिए। इनहेल एंड स्लोली रेज योर लोअर एब्डोमेन अप। जितना आप लोअर एब्डोमेन को ऊपर रेज कर सकते हैं, बहुत आराम से ऊपर करना है। इनहेल, आपका चिन सेंटर में ही रहेगा एंड मेंटेन देयर 1 2 3 4 5. Slowly exhale and slowly come down. Again, very slow or without giving jerk. आराम से इसे करना है। ये 5 times हम करेंगे। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last time, inhale up, exhale down. Relax. Leg straight, both legs straight. Okay. Now again, both hands shoulder level. आपके दोनों हाथ shoulder level में. Fold your both legs. Okay. Now inhale करते हुए दोनों leg को slowly take towards your right side and look at your left hand. जितना हो सकता है आप साइड में ट्विस्ट करके लेफ्ट अपोजिट साइड में देखना है। मेंटेन देयर 1 2 3 4 5. Slowly come back at center. Inhale. Again, opposite side. Both legs together. Take to the left side and look at your right hand. Maintain 1 2 3 4 5. Slowly come back at center and relax. Okay. Now same leg को wide रखना है, जितना आपका मैट में गैप है उतना ही। अगेन बोथ हैंड टी शेप रहेगा, दोनों हाथ आपके टी शेप रहेंगे। इनहेल, टेक योर बोथ लेग टू द राइट साइड। जब आप दोनों लेग राइट साइड ले रहे हो, मेक श्योर आपका जो बैक नी है आपका फ्रंट लेग के फीट को टच कर रहा है। एंड लुक एट योर अपोजिट साइड। ये ट्विस्टिंग आपको हेल्प करेगा आपको एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। होल्ड देयर 1 2 3 4 5. Slowly inhale, center and relax. Now same, take your both legs to the left side. Again, जब आप लेफ्ट साइड दोनों लेग ले रहे हो, आपका जो पीछे वाला नी है आगे वाले फीट को टच होना चाहिए। And look at your opposite hand and maintain there. 1 2 3 4 and 5. Slowly center and relax. Both legs straight. Relax. ये एक सीक्वेंस में करेंगे हम। वापस हम पवन मुक्तासन करेंगे। इनहेल, टेक योर राइट लेग अप 30 डिग्री। फोल्ड योर राइट लेग, इंटरलॉक हैंड करके फोल्ड करना है और स्टमक के ऊपर आपका थाई का प्रेशर आपको फील करना है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हेड अप एंड ट्राई टू टच योर चिन, नोज, फोरहेड, जो भी आपको नी के पास लेके जा सकते हो। होल्ड देयर 1 2 3 4 5. Slowly head down and legs straight. Now take your left leg up 30 degree. Fold your left leg. Press on your stomach. Inhale and exhale करते हुए raise your head up. जो opposite leg है वो आपका नीचे flat ही रहेगा फ्लोर पे। And maintain 1 2 3 4 5. Slowly head down, legs straight and relax. Now both legs together. Inhale, both legs together 30 degree. Fold your leg. इंटरलॉक करके हाथ से अच्छा सपोर्ट करते हुए दोनों थाइस को अच्छे से प्रेस करना है थाइस के ऊपर। नाउ आप जैसे सेटल हो जाओ, इनहेल
and exhale के साथ take your shoulder up and head between your both knees. Maintain 1, 2, 3, 4, 5. Slowly inhale, head down. Exhale, both legs relax. Okay. Normal inhale, exhale के साथ maintain there. Now again, fold your both legs. Fold your both legs. सेतु बंधासन. Keep gap between both legs. जितना मैट में गैप है उतना दोनों लेग में गैप रहेगा. Hold your respected ankle. Now inhale and slowly raise your lower abdomen up. जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है. Maintain there. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale. Take your abdomen down. 5 times. Inhale up. Exhale down. 1 up and down. 2 up and down. 3 up and down. 4 up and down. Last time, up and down. Relax, both legs straight. Relax. Normal inhale, exhale करते हुए अपने आप को relax करना है. Both hand, again shoulder level. Fold your both legs. दोनों knees आपके साथ में ही रहेंगे. Again spine twist करेंगे हम. दोनों leg को take to the right side. Both knees right side रहेंगे. Hand shoulder level में है. जब आपके knees right side में जाएंगे, then look at your left hand. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come back at center. Inhale. Again, slowly take your both legs to the left side and look at your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly center and relax. Now increase gap between both legs. इस सीक्वेंस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जितना आप ये स्लो और आराम से करेंगे उतना आपका एब्डोमिनल मसल्स को मसाज मिलेगा इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, और जिनको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है दोनों में ये हेल्प करेगा. ओके. नाउ बोथ लेग जितना मैट में गैप है उतना स्प्रेड करना है. इनहेल के साथ टेक योर बोथ लेग टू द राइट साइड. अगेन लुक एट योर लेफ्ट हैंड. मेंटेन देयर. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly both legs at center. Okay. Now inhale. Take your both legs to the left side. Look at your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly center and relax. Join your both hands. Straight your both legs. Okay. शवासन में थोड़ा रेस्ट करेंगे. Keep gap between both legs. दोनों लेग में 1 to 2 फीट का गैप रहेगा. आपके हील अंदर की तरफ और टोज बाहर की तरफ रहेंगे. हाथ थोड़ा बॉडी से दूर रहेगा. आपके फिंगर्स ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे और पाम को आप हल्का सा क्लोज करके रखना है. आईज क्लोज. इनहेल एंड एक्सहेल. Inhale and exhale. Wherever you are feeling discomfort, bring your awareness on that part and inhale and exhale. Relax. आपको शरीर में जहाँ भी कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है वहां पे पूरा फोकस आप अवेयरनेस लाइए और हल्की और स्लो इनहेल करते हुए and again slowly exhale. Relax. Relax. Okay. Take your hands close to your body
Bring your legs close. Open your eyes. Take support of your hand. Turn right side and slowly come in sitting position. Okay? Sitting position में आइए. यहाँ पे बहुत लोग बिगिनर्स है जो अभी अभी पहली बार कुछ आसन कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा स्लो वे में ही जाएंगे, ज्यादा स्पीड में या ज्यादा आसन के साथ नहीं जाएंगे, तो सबका कंफर्ट देख के हम करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा प्राणायाम की तरफ आते हैं. तो सिट कंफर्टेबल, आपका जो कंफर्टेबल पोजीशन है उस पोजीशन में आप बैठिए. अगर किसी को सिप ऑफ वाटर लेना है तो थोड़ा वाटर आप ले सकते हो. रिलैक्स. तो पहला चीज है, हम हमारा ब्रीदिंग पैटर्न करेक्शन के लिए एक सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं. सेक्शनल ब्रीदिंग में होता क्या है कि बहुत अननोइंगली हम हमारे ब्रीदिंग के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता. अननोइंगली हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हमें पता नहीं रहता हमारा एब्डोमेन का मूवमेंट कैसा है. और हमारे जो लंग्स है, पूरा जब हम सांस लेते हैं, हम पूरा लंग्स को यूटिलाइज नहीं करते. हमारे लंग्स के जो लोब्स है, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, हम पूरा उसको यूटिलाइज नहीं करते. हम बहुत सुपरफिशियली हम सांस लेते हैं ना, बहुत हल्का सांस लेते हैं, हल्का सांस छोड़ते हैं, तो हमारा बस लंग का ऊपरी हिस्सा यूज होता है. जबकि ये सेक्शनल ब्रीदिंग हमें हेल्प करता है हमारे लंग्स के ईच एंड एवरी लोब्स को यूटिलाइज करने में. जब आप इनहेल करते हो, पूरा ऑक्सीजन आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आपका लंग्स तक चला जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. तो ये बेस्ट, आपको बॉडी से जितना टॉक्सिक, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा उतना अच्छा है ना, जितना ऑक्सीजन आपका अंदर आ रहा है. ओके, तो उसके लिए करना क्या है, 3 वे में डिवाइड किया गया है इसको. एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके, सेकंड थोरैसिक और थर्ड क्लाविकुलर. 3 वे में ब्रीदिंग पैटर्न को डिवाइड किया गया है. जब आप एब्डोमेन से इनहेल एक्सहेल करते हो, आपका लंग्स का लोअर लोब यूटिलाइज होता है, आपका ऑक्सीजन लंग का लोअर लोब तक रीच होता है. जब आप थोरैसिक ब्रीदिंग करते हो, आपके मिडल लोब यूटिलाइज होते हैं. और जब आप क्लाविकुलर बोन ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, आपका ऊपर का हिस्सा, ऊपर का लोब लंग्स का यूटिलाइज होता है. तो आपको ध्यान रखना है, जैसे बलून में आप हवा डालते हो, बलून ब्लो होता है, राइट, और बलून से जब हवा निकालते हो, बलून फ्लैट होता है. सिमिलर वे में आपको याद रखना है, जब आप इनहेल करोगे आराम से और डीप इनहेल करके होल्ड करना है, और आपका एब्डोमेन मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि मूवमेंट में आपका एब्डोमेन ऐसा आगे आ रहा है जब आप इनहेल करते हो. और जब आप एक्सहेल करते हो, बलून से हवा जाने के बाद बलून फ्लैट हो जाता है ना, आपका स्टमक भी अंदर चला जाता है. ओके, तो फर्स्ट हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग ब्रीद आउट प्रैक्टिस करेंगे. टेक योर राइट हैंड ऑन योर स्टमक, लेफ्ट हैंड रिलैक्स ऑन योर लेग. कोई भी कंफर्टेबल सुखासन, वज्रासन, जो भी कंफर्टेबल है उसमें आप बैठिए. बैक ऑलवेज कीप स्ट्रेट. बैक को जितना स्ट्रेट रखना है उतना स्ट्रेट रखना, पेन होने तक नहीं रखना, शोल्डर रिलैक्स करके रखिए. ओके, आईज क्लोज. स्लो एंड डीप इनहेल. Observe with inhalation, your abdomen is moving front like a balloon. Now hold and slowly exhale. Now जैसे बलून से हवा निकालने के बाद बलून जैसे फ्लैट होता है, सेम आपका एब्डोमेन से एयर बाहर आने के बाद एब्डोमेन अंदर गया है. होल्ड. अगेन इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. Inhale.
Exhale. रिलैक्स। ओके, ये था एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये हमारा ब्रीदिंग पैटर्न करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग अननोइंगली इनहेल के साथ स्टमक को अंदर करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। जब आप करेक्ट करते हो तभी उनको आइडिया आ जाता है कि ओके, इनहेल के साथ हमारा स्टमक आगे जाना चाहिए। तो ये करेक्शन भी करता है सेक्शनल ब्रीदिंग, आपको ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव करने के लिए। नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड ऑन योर चेस्ट। ओके, आपका राइट हैंड आप एब्डोमेन पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड चेस्ट पे रहेगा। हैंड और शोल्डर आपके रिलैक्स रखें अगर आपको पेन हो रहा है तो, अदरवाइज स्ट्रेट रहेंगे। अगेन इनहेल। इनहेल के साथ आपका चेस्ट फॉरवर्ड और अपवर्ड जाएगा। होल्ड, स्लोली एक्सेल। एक्सेल के साथ आपका चेस्ट डाउन एंड इनवर्ड जाएगा। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relax. Keep your hands down. ओके, ये आपका, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत स्ट्रेस है, तो रिलैक्सेशन के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। तो कभी भी आप कौन से भी टाइम में ये कर सकते हो। आप इसे सोकर भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। ओके, नाउ इसमें थर्ड है क्लैविकुलर ब्रीदिंग और कॉलर बोन ब्रीदिंग। तो ये आपका कॉलर बोन, यहाँ हमें फील होता है ना, एक बोन है जो इस तरह से हॉरिजेंटल है। उसके आगे यहाँ पे आपके 4 फिंगर्स प्लेस करना है, थंब को पीछे लेना है। अगेन आपके हाथ और आपका चेस्ट स्ट्रेट रहेगा। ओके, सो स्लो इनहेल करते हुए आप यहाँ पे हल्का सा आपको महसूस होगा, ये जो पोर्शन है आपका कॉलर बोन का ऊपर जाएगा और हल्का सा शोल्डर आपका पीछे जा रहा है। इनहेल जब आप करते हो तब, और जब एक्सहेल करते हो नीचे हल्का सा शोल्डर आगे और नीचे आएगा। बस उसको आप फील करते हुए ये ब्रीदिंग आप अभी करेंगे साथ में। चलिए, इनहेल, आईज क्लोज, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल and exhale. Relax. Both hands down. Relax. So ये था आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग। इसे आपको डायफ्रामिक ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और कॉलर बोन ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और ऑल टुगेदर जब हम करते हैं उसको योगिक डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। तो हम ये तीनों एक साथ करेंगे। राइट हैंड ऑन योर एब्डोमेन, लेफ्ट हैंड ऑन योर चेस्ट। और क्लैविकुलर के लिए हमारे पास हाथ नहीं है, तो आप अपने आप फील करते हुए करेंगे। ठीक है, आईज क्लोज, स्लो एंड डीप इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and relax. Okay,
ये ब्रीदिंग पैटर्न आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी रिलैक्सिंग और काम डाउन करता है, आपका नर्वस सिस्टम को भी बहुत रिलैक्स करता है। तो जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है, दिस इज द बेस्ट वन। ओके, सो इसके बाद हम एक प्रैक्टिस करेंगे, कपालभाति का प्रैक्टिस करेंगे। तो कपालभाति के लिए अगेन आपको कोई भी कंफर्टेबल, जो सुखासन पद्मासन, आप जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठिए। अगर आपके पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो कपालभाति प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। बाकी लोग सभी कपालभाति, अगर कोई नया फर्स्ट टाइम कर रहा है तो आप हाथ के साथ आपका एब्डोमिनल मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, फील करते हुए। ओके, और दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में इनहेल करना है और एक्सहेलेशन के साथ आपके जो मूवमेंट है एब्डोमेन का, इन आउट, उसको आप फील करिए, ठीक है। सो क्लोज योर आईज, इनहेल, शॉर्ट इनहेल एंड एक्सहेलेशन के साथ आपका स्टमक मूवमेंट, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स, normal inhale and exhale. One more time करेंगे। Close your eyes. Inhale. Exhale and count your strokes. Relax. Normal inhale, exhale. Okay. कंफर्टेबल पोजीशन में आप जिस, आपको जो कंफर्ट है उसी का इसमें आप बैठिए, आईज क्लोज ही रखिए। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे हम। तो जहां आप बैठते हैं, अगर आपको बैक सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा हल्का बैक सपोर्ट के साथ वही बैठे रहिए। ओके, मेडिटेशन नथिंग बट एक रिलैक्सेशन के लिए रहता है। तो आप देखना, आपका बॉडी कंफर्टेबल रहना चाहिए। आपको बैक को, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है बैक को, तो पूरा वॉल के पास जाके थोड़ा रेस्ट करके आप बैठिए, ठीक है। आईज क्लोज, सिट कंफर्टेबल, कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं करना है। जितना रिलैक्स आप बैठ सकते हो उतना रिलैक्स बैठना है। अगर आपको पीठ में कोई पेन वगैरह होता है तो हल्का सा आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, थोड़ा बैक में जाके, या चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठिए आराम से। पूरा बॉडी में जो भी सेंसेशन, जो भी वाइब्रेशन आपको फील हो रहा है, बस उसको महसूस करते हुए रिलैक्स होना है। आईज क्लोज, आंखें बंद रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल के साथ रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स। तो ये जो मेडिटेशन आज हम करने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशन मेडिटेशन है, जिसमें हमारा बॉडी, ब्रेथ और माइंड रिलैक्सेशन के लिए है। So let's sit comfortable and easily. Eyes closed and body relaxed. Relax your shoulders. Relax and comfortable. Become aware of your whole body. Become aware of your whole body. Become aware of the weight of your body. आपके बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट है, जस्ट उसका अवेयरनेस आप रखिए। आप 50 केजी हो, 70 हो, 100 केजी हो, जो भी है, become aware of your weight and place the weight of your body on the floor or on the chair where you are sitting. Honor your own body. Your body is a precious gift to you from God, from the nature,
भगवान ने दिया हुआ एक अमूल्य तोहफा है आपका शरीर। आपका शरीर का जो भी वजन है, जो भी आकार है, आप उसको जस्ट महसूस करते हुए आप जहां भी बैठे हो, रिलैक्स, रिलैक्स, ऑनर योर ओन बॉडी। स्लोली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड ब्रीद आउट के साथ रिलैक्स। पूरा बॉडी को आप रिलैक्स कर रहे हो। आपके बॉडी में जो भी वाइब्रेशन हो रहा है, आपका अवेयरनेस आपके बॉडी में होने वाले छोटे से छोटे चीज पे रखिए और अपने सांस के साथ उसे कनेक्ट करिए। इनहेल एंड एक्सहेल। Become aware of your breath. Honor your own breath. The breath which is keeping us alive. Breathe in and breathe out. जो सांस आप ले रहे हो उसे एक हल्का सा इनहेल और बहुत धीमे से एक्सहेल करते हुए उसे महसूस करिए। हम जिंदा है क्योंकि हमारी सांसें चल रही है। तो ये अमूल्य तोहफा है भगवान का। ये प्रीशियस गिफ्ट जो आपको भगवान ने दी है, उससे हमेशा इनहेल एंड एक्सहेल। Breathe in and breathe out. Like fish in the water, we are in the air. Become aware of the air all around you and inside you. Slowly inhale and exhale. And exhale. Become aware of your mind. अब अपना पूरा ध्यान आपके मन की तरफ लाइए। Our body is like a big copper candle and our mind is like the glow all around it. हमारा शरीर एक मोमबत्ती की ज्योत की तरह है और उससे आने वाला जो प्रकाश है वो हमारा माइंड है। Whatever thoughts are in your mind, just let them come. जो भी विचार आपके मन में अभी चल रहे हैं आने दीजिए। As the body relax, your mind expand. जैसे जैसे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड एक्सपांड होता जाएगा। सो रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स। Become aware of vast space all around you, all above you, and repose with this mind, this moment. There is nothing to do and nothing to know either. आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एक धीरे से धीमे से लंबी सांस लेते हुए और धीरे से धीमे से लंबी सांस को एक्सहेल करिए। रिलैक्स and relax. That every corner of our mind start to relax. आपका each and every corner आपके माइंड का रिलैक्स हो रहा है, उसे रिलैक्स होने दीजिए। आपका माइंड जितना एक्सपांड हो रहा है, जो जिस कॉर्नर में आपका माइंड जा रहा है, जहां भी जा रहा है उसे जाने दीजिए। उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। Wherever your mind want to go, let it be. Inhale and exhale. Relax and relax.
Now slowly and gradually become aware of your body and your surroundings. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly rub your palm. Keep your palm on your eyes. Feel warmth of your palm. Gently take your hands down and slowly open your eyes. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Vandana ji. Thank Master you. Lakshish Vandana ji. Yeah. Okay, so जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, जिनको फीडबैक फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं. अगर फीडबैक फॉर्म भरने में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. ठीक है. So वंदना जी, जिनको भरना नहीं सबको भरना है. जिनको भरना नहीं सबको भरना है, क्योंकि हम लोग आगे हमको हेल्प करता है वो आगे. राइट स्मिता जी. तो सभी को फीडबैक कंपल्सरी भरना है. तो जो भी आपके ओपिनियन है वो फीडबैक थ्रू हमें दीजिए, तो हमें और वर्कशॉप लेने में मदद होगा. ठीक है, क्योंकि आगे भी और वर्कशॉप हो रहे हैं, तो आप उसके लिए भी हमें जरूर हेल्प करता है आपका फीडबैक ऑलवेज. ओके, चलिए, सी यू टुमारो. और कोई डाउट है इस सेशन के रिलेटेड तो आप मुझे आपका फीडबैक जरूर देना. ठीक है, तो कल मिलते हैं 4 बजे. रेडी? वंदना जी. थैंक यू सो मच. हाँ वंदना जी, सोनाली बोल रही हूँ. हाँ, एक्चुअली मैं बहुत अच्छा सेशन था. आईपैड में लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है. मुझे स्क्रीन पे ना बहुत कम लोग दिखते हैं, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कौन कब बात कर रहा है. हाँ सोनाली जी. हाँ नहीं, मैं Thank कह रही you हूँ so सेशन बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच सोनाली जी. थैंक यू. कल कल मिलते हैं 4 बजे. कोई डाउट नहीं है ना किसी को कुछ भी? चलो, see you tomorrow then 4 o'clock. Thank you so much. Bye. Thank you, Smita ji. Bye. Thank you. Bye. Bye.